hear my voice, please let me know. Use the chat window to communicate. This is a live chat. If you can hear my voice and if you can see me on the screen, please confirm through the chat window. All right, okay, fine then. Cool, I've got the response. So all right, let me quickly repeat what I was telling you. So welcome to Learning Ingenuity, first of all. So the purpose of these classes, why we are conducting these classes, well, the purpose, overall purpose, objective of this class is to deliver knowledge and share information with our learners so that they can excel in their field, they can do something good, especially for the ones who are right now possibly not able to afford the ट्यूशन्स लेट अलोन स्कूल को छोड़िए, मतलब स्कूल ही नहीं अटेंड, मे बी फीस देने में परेशानी है, मे बी हो सकता है, तो ट्यूशन्स तो बहुत दूर की बात है. सो दैट इज़ वाई द ओवरऑल पर्पस इज़ टू डिलीवर द कंटेंट टू द लर्नर्स, स्पेशली दोज हु आर एक्चुअली विलिंग टू डू समथिंग एंड एक्सेल इन द फील्ड टू स्कोर something good, score good marks. Already due to lockdown from last couple of months, 2-3 months, we are facing a lot of challenges. So we are just trying to reduce those sufferings by a bit, so that at home you can enjoy these classes and sit back, relax, and keep learning. Alright, so let's come to the point, the objective of today's class. So today is the orientation class, and the overall objective of an orientation is like when you plan to go and reach somewhere, you plan, right? You plan and you see the maps, you prepare a route, and then you take that path and move and attain your destination, you reach your destination. So that is the whole point. So today we are going to discuss the plan and the strategy, which will include the course structure, the syllabus, and we'll also map the complete course out. I'll be sharing the links and the timetable. Everything would be shared with you on the respective classrooms that you have connected, that you have added to. If anybody else wants to connect to those classrooms and take benefits of these classes, so you can give a call on the number provided on the screen, or just simply send a text, send an email on the email address provided. Okay, so first of all, we talk about the mapping. All right, so let's talk about the courses and the syllabus, because due to the lockdown there has been a slight change in the syllabus this year. What I'm going to do, I'll open up the syllabus. Let's take English for instance. We'll start with English and quickly see what changes have been brought to English and what all do we need to cover and study in English right now. Alright, I believe now you should be able to see alright, for CBSE students, the code for the subject is 184, that is English language and literature. I just need a confirmation if you can see the screen, the shared screen. I just need a confirmation if you can see the shared screen mentioning English language and literature, code number 184 2020-21. Please do let me know if you are able to see the screen, if you are able to see the shared screen. Okay, cool, very good. So, alright, everything, most of the things, well, are the same. I'll just take you to the syllabus directly. Well, these are the objectives and the points what we are going to learn through after completing the course, right? After completing, let's say, after completing the course, you'll be able to build greater confidence and proficiency in oral and written communication. English में बात करने में या कुछ लिखने में आपको confidence आएगा, proficiency आएगी, fluency आएगी. So ये होगा after completing this course. So alright, so these are the points given, mentioned. I'll be sharing these points with you so that you can also see and actually observe the change. When you'll complete the course,
So you'll be able to find out what actual difference is this course making to your skills, to your knowledge. So there are several points. Now there are some methods and techniques as well. We will be implementing these methods and techniques while learning. Now let's talk about the syllabus, all right, which will be actually asked in the examination, right? So let's quickly see the general for class 9th and class 10th, right? So general things for class 9 and 10. So that's why I started with class for the English subject, because class 9 and class 10 have most of the things in common in English, except for the literature part. So the weightage is 80 marks, which is divided into 3 sections, all right? 3 section. Section 1 is section A is reading, which will actually check your comprehensive skills. Section B is writing and grammar, which will check a student's writing skills and grammatical skills. And section C is literature, which will check the overall inferential skills and remembering skills, evaluating skills of the student. कि आप जब स्टोरी को पढ़ते हैं, जब आपने चैप्टर को उसको समझा है, तो उसमें से आपके दिमाग में क्या क्या इंफॉर्मेशन आप गैदर कर पाए, कितने को याद रख पाए, कितनी स्टोरी को किस रूप में आप समझ पाए. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट द CBSE वांट्स टू असेस ड्यूरिंग दीज टेस्ट्स. ठीक है, तो वो 3 सेक्शंस में आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है. सेक्शन ए को वेट्स 20 मार्क्स का होता है. वो भी आपको सेक्शन डिवीजन में आपको बताऊंगा कि 20 मार्क्स जो है वो किस तरीके से डिवाइडेड है. राइट, आई नो सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे ऑलरेडी नो अबाउट दीज थिंग्स, but do not forget there are several students who are possibly doing this class for the first time in this session, right? They are who are actually new to this. So let's just quickly go through each and everything before we commence the class. So class 9 और क्लास 10 दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, विच विल बी डिवाइडेड इन 3 सेक्शन. सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. सेक्शन ए वुड वे 80 मार्क्स, सेक्शन बी वुड वे 30 marks, and section C would weigh 30 marks. All right. Now, the internal division of these marks, in section A there will be 2 questions. One would be for 8 marks and the other would be for 12 marks. So the 8 marks question will have a factual passage. All right. So this is a reading comprehension. I know you must have if you're regularly studying in a CBSE school, so you must have gone through these kinds of passages and questions where there is a passage or a paragraph or a story or an article given to you, and on the basis of that reading some questions are asked. So these are those kinds of questions, those types of questions. So there would be 8 this is going to be for 8 marks and 8 objective type questions. Remember, there would be 8 objective type questions which can include multiple choice questions and fill in the blanks and one word answers. So these will be objective type questions. So there would be just one objective and just you need to put that objective in the answer, right? So जैसे आपसे पूछ लेगा what is the name of some person in the first question, like that. And this will be same for class 9th and class 10th. Question number 1, 8 marks, 8 objective questions. Question number 2 would be a discursive passage. Alright, so a discursive passage is a general information that is given to you. It may be or may not be true. It may be some kind of an opinion. It may be some kind of an argument. However, in the first question, if you notice, there is a factual passage. Factual passage is always truth-based information. Everything that is presented to you is true, all right, because they are facts. So fact-based information hogi kisme? Question number 1 mein, right? So that is really very easy. And in question number 2, you will face some discursive passage, which will be a little longer passage because it's for 400, up to 400 words. And this will contain 2 types of question, which would be 4 will be of this whole question is of 12 marks really scoring, and this will contain this internal is divided into 2 parts. So 4 short answer type questions. I'll highlight this so that you'll be able to see clearly. If you're facing any kind of difficulty, you can please just type in the chat window. I also have the chat window in front of me. I can see it on my screen. So you just simply need to type in the chat window if you have any query, if you have any doubt, if you have any question.
So please go through it. Also, I'll recommend, however, this file would be shared with you in the classroom. This file would be shared with you for all the subjects, syllabus and question patterns will be shared with you before we begin the class, so that you can have an idea what all things that we are going to study during these classes. However, still I'll recommend that you should always keep a notebook and a pen in front of you whenever you are studying. Even if it is online, even if you are using any digital tool, always use a pen and a copy in front of you, so that at times if you want to note down something and it just clicks in your head, and if you really want to note down right away, so you'll use that pen and paper and write that point down, and maybe discuss it later, ask it later. All right, coming back to question number 2. Question number 2 is of 12 marks, which is internally divided into 2 parts, which will contain 4 questions of short answer type, which will be of 2 marks, and 4 objective type questions. So 4 questions would be कि आपसे पूछा जाएगा जिसको आपको approximately 20 to 30 words, maybe 30 words is the maximum, approximately 30 वर्ड्स में आपको उसको आंसर करना है. सी ऑलवेज आंसर समथिंग बेस्ड ऑन द वेटेज इट हैज़, राइट. इसकी जितनी किस क्वेश्चन की जिसकी वेटेज जितनी है उसके हिसाब से ही आपको आंसर करना है. अगर 1 मार्क का है तो मे बी 1 वर्ड और 1 लाइन में आंसर होना चाहिए. अगर 2 मार्क्स का है तो मे बी 20-30 वर्ड्स का आंसर आपका होना चाहिए. अगर वो 8 मार्क्स का है तो येस, देन डेफिनेटली यू नीड टू राइट अ लिटिल बिट मोर सो दैट यू विल स्कोर हायर मार्क्स. Now let's move on to the next section. Well, CBSE has introduced some changes in this section of the paper. ठीक है, तो अब उसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं. Question number 3. Earlier it used to be of 8 mark and it was of writing. Alright, so we are now moving into the writing section of our board examination paper. So writing section would be section B, which will include writing skills and contextual grammar, right. आपकी grammatical skills and writing skills को वहाँ पर assess किया जाएगा. अब वो कैसे किया जाता है? So by asking you to write something, right, based on an information. आपको थोड़ा सा portion of the information, like कुछ cues, कुछ hints दी जाएंगी, and using those cues and hints you will be writing something, right. तो जैसे इन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा सकता है कोई सिचुएशन दे करके कि आप इनफॉर्मल लेटर लिखिए. कोई सिचुएशन दे करके किसी प्लेस या पर्सन या कोई इवेंट उसके बारे में आपसे लिखने को बोल सकता है इन द फॉर्म ऑफ ए डायरी और इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ. और इसकी वर्ड लिमिट होती है 200, राइट. प्लीज़ रिमेंबर स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट, राइट. तो वर्ड लिमिट जो है आपको उसके अंदर ही अपने आंसर को फ्रेम करना है. इफ़ यू विल एक्सीड द वर्ड लिमिट सो मार्क्स वुड बी डिडक्टेड, राइट. CBSE डज नॉट अलाउ यू टू राइट बियॉन्ड द वर्ड लिमिट्स, राइट. सो मार्क्स वुड बी डिडक्टेड इफ़ यू विल क्रॉस द वर्ड लिमिट. ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमने तो बहुत ज़्यादा लिखा था तो बहुत ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं होगा. वर्ड लिमिट जो है उसको आपको फॉलो करना है एंड यू विल नॉट बी इवैल्यूएटेड ऑन द लेंथ ऑफ द कंटेंट. ठीक है, जितना आप ज़्यादा लिख रहे हो उसके बेसिस पे नहीं, जितना क्वालिटी का आप लिख रहे हो उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो आपको वर्ड लिमिट के अंदर जैसे 150 to 200 वर्ड्स एक वर्ड लिमिट है तो 150 से कम नहीं रखें, 200 से ज़्यादा नहीं रखें. ठीक है, और अभी जब आप लिखना शुरू करोगे, प्रैक्टिस करोगे, हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपको आदत भी हो जाएगी, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना लिखने पर कितने वर्ड्स हो जाते हैं, राइट. ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में लिखने और काउंटिंग करने बैठना है. ठीक है, एक बहुत बड़ी आपको फ्रेम दिया हुआ है 150 to 200, तो ऐसा है कि 160 भी होगा तो चलेगा, 190 भी होगा तो चलेगा, राइट. तो ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जामिनर भी काउंट करने बैठता है, बट दिस इज जस्ट एन जनरल आइडिया, राइट. और वो जब आप लिखते हो तो पता चल जाता है कि हाँ, हम जब एक पेज लिखते हैं तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स, तो हमें अब 2 पेज तक लिखना है, 2 पेज क्रॉस नहीं करने हैं, राइट. सो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट. ठीक है, अब वो किस बेस पर अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ विजुअल और वर्बल क्यूज. ठीक है, तो या तो कोई आपको वर्ड्स या कोई स्टोरी या कोई हिंट दे दी जाएगी या फिर कोई इमेज, कोई फोटोग्राफ दे दी जाएगी. व्हेन वी विल actually do some questions, when we'll actually learn some letters and the writing part, so then we will get an idea how these questions are tackled, how these questions are solved.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये पहले 8 मार्क्स का आता था। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्लियर इट वाज फॉर 8 मार्क्स एंड सेम 200 वर्ड्स। नाउ बिकॉज देयर is lockdown and CBSE understand that the paper for English shouldn't be lengthy, because we need to see how much we need to see the general skills of a student, right? And lockdown ki wajah se everybody is facing problems, everybody is facing issues, so that is why you need to you just need to simply answer, and now you will get 10 marks for the same answer, right? So earlier it was for 8 marks, now you will get 10 marks for the same type of answer. So that is a positive change in the question paper, which the students will get the benefit for. Now question number 4. Question number 4 is the story based on given outline or cues. सेम आपको स्टोरी एक दी जाएगी, स्टोरी लिखने के लिए दी जाएगी, एंड द वर्ड लिमिट वुड बी 200, एंड यू वुड हैव टू राइट द स्टोरी गिवन ऑन द हिंट एंड क्यूज। ठीक है, वही आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, कुछ हिंट दे दी जाएगी। पॉसिबली यू माइट हैव इवन मे बी समटाइम्स एट स्कूल और सम काइंड ऑफ एग्जिबिशन आपने देखा होगा कि आपको दे दी जाती है 2 या 3 लाइन या 1 लाइन दे दी जाती है। आपने जरूर इस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक करे होंगे। ठीक है, तो अब ये 10 मार्क्स का लेकिन आएगा, विच इज़ रियली हाई, राइट? इट्स अप्रॉक्सीमेटली 13% ऑफ दी ओवरऑल वेटेज। 18 हाई मार्क्स है, अच्छी वेटेज रखती है, और स्टोरी लिखनी है आपको। ठीक है, तो आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में स्टोरी का फ्लो होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल इंट्रोड्यूस समथिंग, देन यू विल ब्रिंग, एंड जैसे कि आप देखते होगे मूवीज़ सबको पसंद है, आप लोग मूवीज़ भी देखते हो, तो मुझे पता है कि आप भी जानते हो कि मूवीज़ के अंदर किस तरीके से स्टोरीज़ को फॉलो किया जाता है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हीरो और एक्टर्स एंड एक्ट्रेस को इंट्रोड्यूस क्रिएट किया जाता है, फिर उसका क्लाइमैक्स बनाया जाता है, फिर हैप्पी एंडिंग की जाती है, जो भी। तो वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ हिंट्स गिवन, ठीक है, जो आपको क्यूज दिए जाएंगे, जो आपको हिंट दी जाएगी, उसके बेसिस पे ही आपको स्टोरी बनानी है। एंड द वर्ड लिमिट वुड बी अंडर 200 वर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स सी। अच्छा, ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो ग्रामर, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर हम कंप्लीट पढ़ेंगे, ग्रामर की हम सारी चीज़ें समझेंगे और पढ़ेंगे, राइट? सो ध्यान रखने की बात क्या है ग्रामर के लिए, कि आपको जो अभी तक आज तक मे बी क्लास 2 या क्लास 3 से, आई रिमेंबर, राइट, बहुत छोटे होते हैं तब से ग्रामर हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, और 8th तक तो सारी चीज़ें टॉपिक वाइज पढ़ते रहते हैं। ठीक है, क्लास 9 में 10th में उसका इम्प्लीमेंटेशन आ जाता है, उसको ग्रामर को यूज़ कैसे करते हैं वो आ जाता है। ठीक है, तो राइट अवे आपसे ये नहीं पूछा जाता कि एडजेक्टिव क्या होता है, ये एडजेक्टिव का ये फिल इन द ब्लैंक्स में एडजेक्टिव भर दो, ये इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो 9th और 10th में एक्चुअल में उनके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, उनकी ग्रामेटिकल स्किल्स कैसी है, आप एक्चुअल में आपको ध्यान है वो सारे कॉन्सेप्ट, तो वो किस किस चीज़ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपसे टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो कि आपकी एडिटिंग पैसेज वगैरह में पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडल्स जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनसे रिलेटेड पूछा जाता है। पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच में भी किस तरीके के, कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कमांड और रिक्वेस्ट, या कोई स्टेटमेंट है विच इज़ लाइक असर्टिव, लाइक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या फिर कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है उनको रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्जन या उनका यूज़ आता है। ठीक है, तो आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नहीं बोलता है डायरेक्ट कि इसको कन्वर्ट करके पैसिव वॉइस में बनाओ, इस तरह का क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पैसिव वॉइस आता है, तो पैसिव वॉइस का कोई सेंटेंस दे करके और आपसे कोई कन्वर्जन या कुछ फिल इन द ब्लैंक या कोई एडिटिंग या इस तरीके से क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन टाइप भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है और कौन से पोर्शन से वो पूछा जाता है। हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, क्लॉजेज क्या होते हैं? तो क्लॉजेज में भी नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, ये एडवर्ब क्लॉज और जो एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, ये तरीके के जो 3 तरीके के क्लॉजेज होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। एंड देन फाइनली डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशंस, व्हाट आर डिटर्मिनर्स एंड व्हाट आर प्रीपोजिशंस, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और उससे बेस्ड उसके इम्प्लीमेंटेशन पे, उनके यूज़ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अबव आइटम्स, अब आप ये देख सकते हो, द अबव आइटम्स में भी टेस्टेड थ्रू टेस्ट टाइप्स, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट, तो वो कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे देखा जाता है, उनके यूज़ के बेसिस पे देखा जाता है। और ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी किन के थ्रू? क्लोज टेस्ट या क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग या एडिटिंग। ठीक है, इस
तीन तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं विच विल हैव 4 मार्क्स वेटेज, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ 4 मार्क्स वेटेज है, तो आप ऐसा सोच रहे होगे कि अरे ये तो बहुत ही कम है, इसके लिए इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। तो इतना सारा पढ़ने के लिए क्या करना है? तो इतना सारा पढ़ने के लिए देखिए ऐसा है कि सारी चीज़ें अपन पढ़ते तो पहले से ही आ रहे हैं। उसको मुझे पता है कि आपको ऑलरेडी, जैसे फर्स्ट टॉपिक है टेंसेस, तो टेंसेस मुझे पता है क्लास 4 क्लास 5 में आपने पढ़ा होगा, पर हम क्या है उसको क्विक रिकैप करेंगे और सारी चीज़ें जो हैं जल्दी से उसको समझेंगे और ऐसा समझेंगे कि फिर लाइफ में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना टेंसेस में ना ही ये कोर्स करने के बाद आपको जो ये टॉपिक्स हैं इनमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन टाइप जो पूछता है वो या तो एडिटिंग भी पूछता है, तो एडिटिंग में जैसे कि आपको दे देता है कि एक पैसेज, फिर उसके अंदर दे दिया जाएगा कि एक जो सेंटेंस है उसके अंदर एक वर्ड जो है वो गलत है, one word in a sentence in a line would be incorrect, and then you would have to identify the word, write the correct word in front of it, right? So this is the type of question that is asked in editing. Close passage is like एक पैसेज दे देंगे and उसके बाद में आपको कुछ वर्ड दे देंगे and you need to select the appropriate word which will actually fit in that gap, into that, so that the passage would be closed and will have a meaningful, will be meaningful, right? Will have a meaning. तो उसके बेसिस पे आपसे क्लोज पैसेज पूछा जाता है, ठीक है। सिमिलरली 6 मार्क्स है, ठीक है। ये एक चीज़ जो है ये इंट्रोड्यूस हुई है इस साल, जो कि 6 मार्क्स का है, विच इज़ डायलॉग राइटिंग एंड रिपोर्ट डायलॉग ऑन अ गिवन क्यू, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर अपने को जो एक डायलॉग दिया जाएगा, जो सिचुएशन दी होगी, उसके जो डायलॉग दिए होंगे उसके बेसिस पे या तो आपको उसको रिपोर्ट करना है उसके इन्फॉर्मेशन को, या फिर आपको खुद से डायलॉग लिखना है जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे। यू नीड टू प्रिपेयर डायलॉग लाइक स्क्रिप्ट, राइट। जैसे कि कुछ किसी आपने प्ले में, किसी ड्रामा में कभी आपने देखा हो, फिर डायलॉग्स कैसे बोलते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा, विच इज़ ऑफ 6 मार्क्स। दिस इज़ अ स्लाइट चेंज, ये एक छोटा सा चेंज है। इसके पहले कुछ रीअरेंज द जम्बल वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इस तरीके से क्वेश्चन आता था, तो वो हटा दिया है और उसकी जगह 6 मार्क्स का ये इंट्रोड्यूस कर दिया है, विच आई बिलीव यू विल एन्जॉय एंड यू विल एक्चुअली हैव फन डूइंग दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज आई एम श्योर एवरीबडी हैव सीन मूवीज एंड प्लेज एंड यू नो what डायलॉग्स आर, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। So this was section B which weighted 30 marks. Now let's move on to section C. देखिए अभी तक जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की, ये कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनमें चेंजेस नहीं है। क्लास 9th में भी वही चीज़ें पढ़ेंगे, क्लास 10th में भी वही चीज़ें पढ़ेंगे। अब चेंजेस जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं अपने लिटरेचर में, बिकॉज क्लास 9 के लिटरेचर बुक और सप्लीमेंट्री रीडर बुक अलग है, क्लास 10 के लिटरेचर बुक और सप्लीमेंट्री बुक अलग है, ठीक। तो लिटरेचर बुक जो है उसके अंदर से, लेकिन क्वेश्चन टाइप जो है वो सेम आएंगे, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, भले ही बुक्स डिफरेंट है तो उसका जो लिटरेचर है, उसका जो अंदर का कंटेंट है वो डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन टाइप जो है वो सेम है, क्वेश्चन पैटर्न जो है वो सेम है, क्वेश्चन मार्किंग जो है जो वो भी सेम है, जो वेटेज है वो भी सेम है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम प्रोज, पोएट्री, प्ले फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। जैसे आपने सेक्शन ए में देखा था अनसीन पैसेज आता है, इसके अंदर आपको एक सीन पैसेज दिया जाएगा। सीन पैसेज में आपको या तो पोएम की, किसी पोएम की 4 से 6 लाइनें हो सकती हैं, या किसी प्रोज या आपका जो कोई प्ले है बुक के अंदर, तो ऑलरेडी जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपके लिटरेचर बुक्स के अंदर है, वो उसमें से आपको एक पैराग्राफ या 4 लाइनें कुछ लेकर के आपको वो देगा, और उसके बेसिस पे आपसे या उस चैप्टर के बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछेगा 2 मार्क्स के, ठीक है। पहले ये हुआ करता था 4 क्वेश्चंस 1 मार्क्स का, ठीक है। फर्स्ट अर्लियर इट यूज्ड टू बी 4 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, बट नाउ इट विल बी 2 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो रिमेंबर क्वेश्चन नंबर जो है वो घट गए हैं और आपकी वेटेज भी बढ़ गई है, राइट। तो क्वेश्चन जो रहेगा वो वैसा ही आएगा, ईजी आएगा, ठीक है, विच वुड बी आंसर्ड इन 2 to 3 lines, and then still you will be getting 2 marks instead of 1 mark. So this is again something which makes this paper a little bit easier for the students,
राइट। तो CBSE ने कुछ चेंजेस जो करे हैं वो इंग्लिश के पेपर में, और वो अच्छे करे हैं, पॉजिटिव चेंजेस मेरे को तो टोटली लगे, क्योंकि उससे पेपर जो है वो आपका थोड़ा और 15 से 20 मिनट पहले हो जाएगा, सो यू विल गेट टाइम टू रिवाइज द होल आंसर शीट। ओके, लेट्स सी। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आएगा आपके 5 शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर मतलब कि आंसर देम इन 30 to 40 वर्ड्स, 30 से 40 शब्दों में यू नीड टू आंसर दी क्वेश्चन, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आएंगे आपके, अब क्लास 9 की बात हो रही है, तो 3 क्वेश्चन जो आएंगे दे विल बी फ्रॉम Beehive एंड 2 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम मोमेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर भी आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी, तो इसमें आपको 3 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 4 में से 3 क्वेश्चन ही करने होंगे Beehive से, तो 4 क्वेश्चन आपके Beehive से आएंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और 3 क्वेश्चन जो है मोमेंट से आएंगे, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है। तो सिमिलरली ऐसा ही सेम अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और दूसरी बुक में जो फर्स्ट स्लाइड में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मार्किंग जो रहेगी उनकी 2 मार्क्स की रहेंगे, 5 क्वेश्चन आपको, 5 आंसर आपको देने होंगे 2 मार्क्स के, तो टोटल ओवरऑल ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 वुड बी 1 लॉन्ग आंसर टाइप। ठीक है, आप ऐसा है कि लॉन्ग आंसर टाइप में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप में ऐसी चीज़ पूछी जाती है जिससे आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट या फिर अक्रॉस द टेक्स्ट वो चेक की जाती है, कि जो आपने स्टोरी पढ़ी है उससे आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो, क्या सिचुएशन उसकी एसेस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने के लिए, तो जैसे कि अभी आपको बताता हूँ, अगर आपने स्कूल्स में अभी तक अगर हो गया है, पढ़ा है, ठीक है, तो जैसे आपने स्टोरी पढ़ी होगी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो अब उसके अंदर आपको बुक के अंदर ही क्वेश्चन था, तो उससे अब आपकी इमेजिनेशन को चेक करने के लिए एक क्वेश्चन गया था कि आपको स्टोरी को समझ कर क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन रियल में भी हो सकता है। तो यस, दिस इज टोटली ट्रू इन केस ऑफ स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ चिल्ड्रन, अ चाइल्ड और हिज पेरेंट, दिस कैन बी ट्रू, just like the mistress of that dog. If you have studied the story, then I'm just giving you an example. So this is how your imagination is tested, right? कि अब आप उस स्टोरी से समझ करके कुछ इमेजिन करके और आपको एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाएगा, एंड प्लीज रिमेंबर दैट these questions are not going to be फ्रॉम द बुक एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हो कि हमारी NCERT के पीछे के जो दे रखे हैं 4-5 क्वेश्चन उन्हीं में से पूछे जाएंगे, सो नो, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर उठा करके आप देख सकते हैं, सो दोज क्वेश्चंस आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, दे आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली द सेम, राइट, बट दे हैव द सिमिलर आइडिया। सो दैट इज वाई अगर क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से कर लोगे तो आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी और वो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो वर्ड लिमिट रहती है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसकी वर्ड लिमिट है अप टू 150 वर्ड्स, तो आपको आंसर करना है अप टू 150 वर्ड्स, वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करेंगे, वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, इसको इतने में ही आपको पूरा आंसर को प्रेजेंट करना है, और टू द पॉइंट रेलेवेंट आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टोरी लिख रहे हैं, कुछ भी आप उससे रिलेटेड लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल इसको रेलेवेंट रखेंगे, टू द पॉइंट आंसर रखेंगे, पर वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए। सिमिलरली, अच्छा, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आएगा वो आएगा आपके जो मेन कोर्स बुक है, जो मेन लिटरेचर बुक है, जो कि 9th में Beehive है उसमें से, और जो 10th में क्वेश्चन नंबर 10th में जो लॉन्ग आंसर टाइप है वो आएगा सिमिलरली एग्जैक्टली सेम तरीके की चीज़ वो आएगा मोमेंट्स से। ठीक है, तो क्लास 9 में जैसे Beehive एंड मोमेंट्स 2 बुक्स हैं, ऐसे क्लास 10 में फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 2 बुक्स हैं, तो सिमिलरली डिवीजन जो है वो उसमें हो जाएगा। ये मैं आपसे कंप्लीट PDF जो है क्लासरूम में शेयर करूँगा, तो आपको ये सारी चीज़ें दोबारा से मिल जाएंगी। इन केस इफ़ यू वांट टू सी देम, देन यू कैन सिंपली गो थ्रू देम। अच्छा, इसके अलावा एक प्रैक्टिस के लिए हमारे पास वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस एक वर्कबुक भी है, NCERT की ही है, सो आई विल रिकमेंड दैट यू विल ऑल्सो सॉल्व दिस फॉर, बिकॉज दिस विल हैव द क्वेश्चंस फॉर सेक्शन A, सेक्शन B,
ठीक है। सेक्शन ए और सेक्शन बी की कैसे प्रिपरेशन करें, तो उसके लिए वर्कबुक है, उसके अंदर आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिलेंगे, आर्टिकल, लेटर राइटिंग और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके अंदर सब चीज़ें मिलेंगी और सिमिलर टाइप के मिलेंगे जो कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। सो दिस इज फॉर क्लास 9। सिमिलरली वही चीज़ें सेम टू सेम फॉलो होंगी फॉर क्लास 10, ठीक है। 20 ये क्लास 10 का देख रहे हैं, सॉरी ये क्लास 10 का हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन वाइज वेटेज देख रहे हैं हम। तो रीडिंग स्किल्स इज 20, राइटिंग स्किल्स इज 30 एंड लिटरेचर इज अगेन 30। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 फैक्चुअल पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कर्सिव पैसेज, वही 8 नंबर 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहाँ पर एक छोटा सा चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले 10th में और पूछा जाता था फॉर्मल लेटर, जो कि 3 तरीके की लेटर्स पे बेस्ड होता था, या तो कोई एप्लीकेशन होगी या कोई ऑर्डर होगा। कि ऑर्डर इन द सेंस कि आप किसी को थ्रू मेल, थ्रू अ लेटर आप किसी को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे कोई सामान चाहिए और वो इतनी क्वांटिटी में चाहिए, मुझे इतनी तारीख तक भिजवा दीजिए, ये इसका पैसे देने का तरीका रहा। लाइक अ प्रोफेशनल, जो ये फॉर्मल लेटर इन अ प्रोफेशनल, रिटन इन अ प्रोफेशनल वे, और वो किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे ही लिखा जाता है या कोई सेलर को ही लिखा जाएगा, ताकि उन तक आपकी बात पहुंच जाए और वो आपको आपका सामान जो भी रिक्वायरमेंट है वो दे दें। लेकिन अब इस साल उन्होंने क्या किया है, CBSE ने चेंज कर दिया है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, और वो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। अब वो पहले तो ये था कि डिस्क्राइब था कि या तो एप्लीकेशन आएगी या कंप्लेनिंग लेटर आएगा या फिर आपका प्लेसिंग एन ऑर्डर, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ये 3 तरीके से। लेकिन अब किसी भी तरीके का फॉर्मल लेटर आ सकता है और आपको सिचुएशन गिवन होगी। तो एक जनरल, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द लेटर हमें समझना है, उसके बाद उसकी ढेर सारे लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है। अब कहीं से भी कुछ भी उठ करके आ जाए तो हमें फिर कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे सभी तरीके के 4-4, 5-5 लेटर्स की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मोस्टली मतलब चांसेस वही हैं कि उसी तरीके के लेटर्स ही आएंगे, ईदर एन एप्लीकेशन और कंप्लेन और प्लेसिंग एन ऑर्डर, दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, पर इनमें से कोई सा भी एक आ सकता है। अच्छा, वर्ड लिमिट इसकी है 200 अगेन, एंड मार्क्स इज 10, जो कि 9th में भी सेम है। 9th में बस क्वेश्चन टाइप अलग था। क्वेश्चन टाइप इसमें अब फॉर्मल लेटर है, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इन क्लास 10 इज राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो, कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उससे आप इन्फॉर्मेशन से और काम की चीज़ जब एक्सट्रैक्ट करते हो, कोई, ठीक है, आपको कोई एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, कोई पैराग्राफ दिया हुआ है, मान लीजिए कोई पैसेज दिया हुआ है, और उसके अंदर कोई चीज़ आप एक्सट्रैक्ट करते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, सो दैट इज एनालाइजिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना है बेस्ड ऑन द गिवन मैप या चार्ट या रिपोर्ट या लाइन ग्राफ या कुछ भी। तो आपको क्या दिया होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा दिया होगा, ठीक है, विच कैन बी अ चार्ट और अ पाई चार्ट और अ मैप और अ ग्राफ, और उसके बेसिस पे यू नीड टू राइट मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन विच इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द इंफॉर्मेशन विच विल एनालाइज थ्रू इट, कि भाई कि 1945 में और वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उसके वर्ल्ड वॉर के बाद से ये सिचुएशन जो है ये हो गई थी, एंड नाउ राइट नाउ वी आर, और आपने देखे भी होंगे लाइक काफ़ी सारे ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स वगैरह आपको पता होंगे किस तरीके के होते हैं। तो उनके बेसिस पे आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी वर्ड लिमिट होगी 200 वर्ड्स। दिस इज गोइंग टू बी फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। ग्रामर इज द सेम फॉर क्लास 10 एज वेल, ठीक है, सारे टॉपिक जो सेम हैं। क्वेश्चन भी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एग्जैक्टली सेम है, क्लोज पैसेज, गैप फिलिंग और एडिटिंग, एंड क्वेश्चन नंबर 6 वुड बी डायलॉग राइटिंग। सेक्शन सी लिटरेचर में आपसे पूछा जाएगा, क्लास 10 स्टूडेंट आपसे पूछा जाएगा वही सेम सीन पैसेज दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में, एंड देन यू विल बी आस्क्ड 2 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, एंड बोथ शुड बी आंसर्ड within 30 words. Next is question number 8, again from 5 question you need to answer carrying 2 marks each, or word limit would be 30 to 40, and remember 3 questions will be for first flight,
ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से 3 आपको आंसर करने हैं फर्स्ट फ्लाइट की बुक से जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, और 2 क्वेश्चंस जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट फ्लाइट से, और सेम वही चीज़ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन, ये चीज़ें एनालाइज करने के लिए आपसे पूछे जाएगा। वर्ड लिमिट वुड बी 150, मार्क्स वुड बी 8, and question number 10 would be of 8 marks, word limit is 150, and the question would be asked from footprints without feet, which is the supplementary reader. So these are the changes. Instead of this is the change in the paper pattern. There is no change in the syllabus. All right, students, I just need to confirm this to you that the books are still the same. It's just the change in the paper pattern. Most of the things are same, just a couple of questions, and the pattern and their marking is changed. Earlier there used to be 11 questions, now there are only 10. Okay, remember, आपका एक क्वेश्चन जो है पेपर में से वो कम हो गया है, सो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू दिस टाइम द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन द बोर्ड दिस टाइम शुड बी एबल टू सॉल्व द पेपर एटलीस्ट 15 to 20 minutes प्रायर, राइट, क्योंकि चीज़ें कुछ बढ़ाई नहीं गई हैं, वही चीज़ जो थी उसमें से एक क्वेश्चन कम कर दिया गया है और मार्किंग बढ़ा दी गई है। चलिए, सो दिस वाज फॉर इंग्लिश। Please give me a moment. Let's see what are the things and changes in the other subject. Let's take science now. All right. So now I believe you are able to see. Just please give me a confirmation if you are able to see. Students, can you please just give me a confirmation if you are able to see science code number 086 classes 9th and 10th in front of you. All right, okay, fine, cool. Let's quickly see. All right, so the paper again I'll like to bring this to your knowledge. So it will be of 80 marks in overall, and 20 marks will be for internal assessment. Internal assessment मतलब कि आपके स्कूल से, जिस भी स्कूल से आप क्लास 10th या 9th कर रहे हैं, वो आपके मार्क्स जो हैं वो अपडेट करेंगे। So out of 100, 20 would be given from the school, और वो 20 भी किस तरीके से ब्रेक किए गए हैं, किस तरीके से क्या किस चीज़ की क्या वेटेज है वो आपको बताते हैं, और 80 would be assessed on your written paper which will be conducted by board। ठीक है, तो जो इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, यही सामने दिया हुआ है। इंटरनल असेसमेंट जो है उसमें 5 मार्क्स जो हैं वो आपके रहेंगे पीरियोडिक टेस्ट, जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट होते रहते हैं हर 1 महीने 2 महीने में आपके स्कूल वाले कंडक्ट कराते हैं, उसके 5 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, हमारे स्कूल में भी हमने अभी रिसेंटली कंडक्ट करवाया था। ठीक है, 5 मार्क्स जो है आपकी वेटेज रहेगी ओवरऑल। जो भी कोई क्लास टेस्ट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई कुछ भी जो चीज़ जो अलग आप कुछ भी कर रहे हैं क्लास में, ठीक है, इंटरैक्टिव कुछ कर रहे हैं, कुछ लर्निंग से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, कुछ क्विज कर रहे हैं, कुछ अलग कुछ भी एक्टिविटीज़ जो है सब्जेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़, लेकिन वो आप कर रहे हैं, तो 5 मार्क्स वुड बी गिवन टू यू बाय योर टीचर on the basis of your presentation, your quiz और test और कोई class test है उसके basis पे। ठीक है, 5 marks would be for practical। 5 marks जो हैं आपके साइंस के रहेंगे, जो भी साइंस के आपके प्रैक्टिकल्स हैं इस साल, उसके बेसिस पे। और 5 मार्क्स वुड बी फॉर योर पोर्टफोलियो। ठीक है, और जो कि होगा आपको क्लास के अंदर आप क्या काम कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके स्कूल के पास में है, राइट। सो स्कूल वुड बी असेसिंग यू, स्कूल विल बी प्रोवाइडिंग यू दोज मार्क्स आउट ऑफ 5। ठीक है, सो अब ये 20 मार्क्स जो है सॉरी 20 मार्क्स जो है वो 5 5 5 5 करके 4 पार्ट में डिवाइडेड है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि 80 मार्क्स जो है वो कैसे डिवाइडेड है। ठीक है, तो ये एनुअल एग्जामिनेशन का कोर्स स्ट्रक्चर है। जस्ट गिव मी अ मिनट। इसके अंदर आप देख रहे हैं
your class, this is for class 9. Class 9 science is divided into 5 units. All the chapters are divided into 5 units, and उनके मार्क्स भी सामने जो है वो लिखे हुए हैं कि कौन से यूनिट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ओके, तो ये चैप्टर्स के नाम वगैरह दिए हुए हैं. अच्छा, आपको सिलेबस में और पेपर पैटर्न बताता हूँ. थोड़ा सा दुख की खबर है. तो भले ही जो भी सिचुएशन रही, इंग्लिश के पेपर में चेंजेस हुए और वो बिल्कुल कुछ अच्छे के लिए चेंजेस ही हुए हैं, ठीक है, लेकिन साइंस में और मैथमेटिक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है. साइंस और मैथमेटिक्स का सिलेबस और पेपर पैटर्न एवरीथिंग वुड बी द सेम, ठीक है. हाँ, एसएस में भी कुछ चेंजेस हुए होंगे, ठीक है, एसएस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं. तो एवरीथिंग वुड बी द सेम. विल बी स्टडिंग द सेम old book that was there in CBSE for the previous students who were studying in previous classes. तो कोई बुक्स के अंदर चेंजेस नहीं है, सिलेबस भी वही है और पेपर पैटर्न भी, एग्जाम पैटर्न भी वही सेम है. तो हम एक बार उसको पेपर पैटर्न पे आ जाते हैं. ओके, तो ये रहा क्लास 10 का कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है. इसके अंदर आपको दे रखे हैं अगेन क्लास 10 में भी CBSE में और 5 यूनिट्स हैं विच इज़ डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड अमंग 80 मार्क्स, ठीक है. जो 80 मार्क्स का जो टेस्ट होगा आपका रिटन पेपर, वो 80 मार्क्स जो है वो इन 5 यूनिट से ही पूछी जाएगी. और आप इसमें देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है. तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 वो सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है. यूनिट 3, 4, 5 जो है वो इतनी वेटेज नहीं रखती है, ठीक है, वो उससे कम वेटेज रखती है. तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 तो आपको मतलब बहुत ही अच्छे से बिल्कुल करके जानी है. मैं तो आपको पूरी ही तैयारी करा रहा हूँ. दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज क्लासेज इज दैट यू विल स्कोर the best marks possible, and yes, when I say the best marks possible I mean 100. तो ऑब्जेक्टिव तो हमारा 100 का ही है, टारगेट तो हमारा 100 का ही है और बिल्कुल तैयारी इसी के लेवल की करेंगे. लेकिन फिर भी अब आपको अगर देखा जाए कि अगर आपको देखना है कि कौन सा पहले करना है, तो जिसकी वेटेज ज़्यादा है, जो ज़्यादा मार्क्स होल्ड करता है, आपको उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग तैयार करना है. वो चैप्टर्स आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी वेटेज रखते हैं, ठीक है. सिमिलरली, ठीक है, तो ये तो था आपका कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th और 10th का साइंस का, ठीक है. अब इसके चैप्टर्स वगैरह जो हैं, उनके चैप्टर्स के अंदर क्या टॉपिक्स हैं, इनको सबको हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है. तो ये फाइल जो है मैं आपको क्लासरूम्स पे शेयर करूँगा. सिमिलरली आपको मैथ्स का भी बता देता हूँ. Okay, students, can you please quickly confirm that whether you are able to see this screen or not, whether you are able to see the mathematics 9, 10 and 041 in front of you. Okay, cool, fine. So let us continue. So मैथमेटिक्स के भी ये जो है, इसका मतलब कि कोर्स करने से क्या फ़ायदा होगा, ये कोर्स करने के बाद में स्टूडेंट जो है वो क्या क्या चीज़ें कर पाएगा. तो ये सारे पॉइंट्स हैं वो दिए हुए हैं, जो चीज़ें सीखेंगे आप वाइल डूइंग द कोर्स, ठीक है, और वो किस किस चीज़ों से सीखेंगे. तो ये रहा कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9 का. क्लास 9 के जो यूनिट्स हैं वो आपके सामने ये रहेंगे. इसके अंदर आप देख रहे हो, आप जो ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री होल्ड्स द मैक्सिमम मार्क्स. ज्योमेट्री यूनिट 4 होल्ड्स 28 मार्क्स अलोन. दिस यूनिट अलोन होल्ड्स अ वेटेज ओवर 33%, ठीक है. 33% से ज़्यादा मार्क्स की ये अकेली यूनिट है ज्योमेट्री. बाकी की और यूनिट्स भी हैं जो कि अपनी अपनी वेटेज है, कोई 8 मार्क्स का है, कोई 17 का है, लेकिन
ज्योमेट्री जो है रियली ज्योमेट्री इज रियली एन इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, राइट? इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इमेजिनेशन, राइट? यू नीड टू बी एबल टू इमेजिन फिगर्स in order to be able to solve the questions and get to the right approach in solving those questions, right? So that is why I really like geometry. So अभी दे रखे यूनिट में कौन कौन सी यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स के अंदर क्या टॉपिक्स हैं, ये इन डिटेल एक थॉरोली उनको एक्सप्लेन किया हुआ है और इन्हीं चीज़ों को, इन टॉपिक्स को हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे. वेल मैथमेटिक्स फॉर me, according to me, right, just my opinion, maybe your opinion can differ from my opinion, but my opinion is mathematics you can excel only by practice. Like only by practicing you can excel and score the full marks. And yes, you can do it. In mathematics you can score 100 marks. I have done it in class 10th board, so you can also do it if you just get to the right approach of solving that problem, right? You just need to be able to create a right approach कि उस प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, उसके राइट अप्रोच पे जाना है. एंड येस, यू कैन स्कोर 100 मार्क्स वेरी इजीली इन मैथमेटिक्स. ठीक है, so these are the chapters which we will be studying during these classes. So you can have a thorough look and detailed look when I'll share this file with you. Similarly, अच्छा, और ये इसका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे. जैसे रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग कि आपने किस टॉपिक को समझा हुआ है, तो रिमेंबरिंग बेस पे कि आपको फार्मूला उसका याद है क्या, उसका टॉपिक आपको याद है क्या, तो वो डायरेक्ट एप्लीकेशन होगी उसकी कि अगर आपको बस फार्मूला याद है तो यू जस्ट नीड टू अप्लाई द फार्मूला एंड यू विल बी एबल टू. उसके 43 मार्क्स पे, ठीक है, तो आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, आइडेंटिटीज़ यूड हैव टू रिमेंबर. ठीक है, अप्लाइंग, राइट, जैसे कि मैं आपको बात कर रहा था कि आप अप्रोच कौन सी यूज़ कर रहे हो, उसको अप्लाई कैसे कर रहे हो, कि आपने दिमाग में सोचा कि यार इसका सोल्यूशन इस तरीके से आ जाना चाहिए, पर उसको आप अप्रोच कैसे करो. अगर अप्रोच आपकी अप्लाई उसकी एप्लीकेशन उसका और सही नहीं है तो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है. तो वो आएगी सिर्फ प्रैक्टिस से. जब आप प्रैक्टिस करोगे और ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे देन यू विल बी एबल टू डू इट. ठीक है, इवैल्यूएटिंग, क्या आप उससे क्या इवैल्यूएट कर पा रहे हो, क्या एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो. जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे आप क्या इवैल्यूएट कर पा रहे हो और फिर उसको कैसे एनालाइज कर पा रहे हो और फिर कैसे सॉल्व कर रहे हो. और ये भी अलग अलग वेटेज रखते हैं. तो रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आपसे 43 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा. अप्लाइंग से रिलेटेड 19 मार्क्स का, एप्लीकेशन से रिलेटेड आपका 19 मार्क्स का होगा. एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग से रिलेटेड 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे. वाइल वी विल बी प्रैक्टिसिंग देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. ठीक है, इंटरनल असेसमेंट भी इसमें शॉर्ट में दिया हुआ है. ठीक है, जो आपका जो असेसमेंट्स वगैरह होते हैं, जो कि क्लास टेस्ट हो गए या फिर कोई जो असेसमेंट जो आपके पीरियोडिक असेसमेंट हैं, उन पे आपके 10 मार्क्स है, विच इज़ डिवाइडेड इनटू 5+5, टू पार्ट्स, 5+5. पोर्टफोलियो मीन्स योर होमवर्क एंड क्लास वर्क एंड एक्टिविटीज़ दैट यू डू इन द क्लास, तो उसके 5 मार्क्स हैं. और लैब प्रैक्टिकल या मैथ्स लैब एक्टिविटीज़ जो आप करते हो, जो आपके मैथ लैब में दी हुई हैं, तो वो 5 मार्क्स की होंगी. सो दिस इज़ हाउ द 100 मार्क्स आर डिवाइडेड इनटू 100 मार्क्स would be allotted to a student. Similarly for class 10 course structure, now you can see over here geometry does not hold the equivalent weightage, right, as it was in class 9. So in class 9 if you want to do it, so you need to have a strong hold in geometry. And let me tell you, right, so in class 9, class 10, the topics and the subjects, the topics that you are studying in class 9 will give you a slight base of what you will be studying in class 10, right? They are not 100% different, right? तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो चेंज हो गया कि क्लास 9 वो अलग है, क्लास 10 जो अलग है. दे आर डिफरेंट, हाउएवर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, राइट. तो क्लास 9 में इसीलिए तो आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि क्लास 10 में अब करो, वरना ऐसा कि क्लास 9 पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं होती. अगर क्लास 10 के ही आपको टॉपिक्स सर उससे काम चल जाता, क्लास 9 की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसकी पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी. पर ऐसा नहीं है. तो क्लास 9 के जो सिलेबस है दैट गिव्स यू अ स्लाइट बेस.
so that you can understand things better in class 10. अब आप देख सकते हो उसमें भी क्लास 10 में भी आपके नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, ये सारी चीज़ें आपके क्लास 9 में भी थी, तो विच गिव्स यू अ स्लाइट बेस, इट गिव्स यू अ स्लाइट इंट्रोडक्शन कि अच्छा ये चीज़ ऐसी होती है। फिर क्लास 10 में उसके थोड़ा सा एडवांस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको बता देता हूँ वो एडवांस क्वेश्चन जो है वो नाम से ही ऐसे एडवांस लग रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव द राइट अप्रोच इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस एंड इट विल बी जस्ट लाइक in a click you will be able to do those questions, ठीक है। तो these are the topics and the chapters topics. Okay, so similarly as in class 9, class 10th as well has 43 marks for remembering and understanding types of questions, 19 marks for applying application of concept in the question to get the answer, and analyzing, evaluating and creating, ये तीन चीज़ें जो हैं वो आपकी चेक की जाएंगी फॉर 18 मार्क्स, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो 18 मार्क्स के, वो ये तीन चीज़ें आपकी असेस की जाएंगी, ठीक है। अभी पता है मुझे, शायद हो सकता है सब बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये क्या होता है सर, अप्लाइंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिमेंबरिंग क्या है, ठीक है। पर बिल्कुल ऐसे घबराने की बात नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे देन आई विल गिव यू एन आइडिया कि अच्छा ये कि रिमेंबरिंग के बेसिस पे वो क्वेश्चन होगा एग्जैक्टली जो कि आपको किसी क्वेश्चन को यूज़ करवा रहा होगा, लाइक जो किसी फॉर्मूला या किसी आइडेंटिटी को यूज़ करवा रहा होगा। एग्जैक्टली अगर कोई फॉर्मूला फिट करते ही अगर आंसर आ जाता है, सो देन इट इज़ बेस्ड ऑन रिमेंबरिंग, क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था और आपको आंसर आ गया। सो दिस इज़ व्हाट दीज स्किल्स मीन, ठीक है। तो ये जो स्किल्स हैं वो इसका ये मतलब है, ठीक है। CBSE यूजेस सर्टेन टेक्निक्स इन द क्वेश्चंस कि ये स्किल टेस्ट हो पाए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज आवर कोर्स स्ट्रक्चर and also the orientation class, and just let me give you certain rules and certain ideas what we are going to the map of the road map that we will be following in order to achieve the best results that we are targeting to, ठीक है। तो अपनी जो मंजिल है उस तक पहुंचने के लिए जो अपने रास्ता भी तो चुनना है, तो वो रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, पर रास्ते में क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या हमें रिसोर्सेज और टूल्स हमारे पास हैं, ठीक है। बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, उसको हमको पढ़ना है, समझना है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमेशा मतलब होमवर्क तो जो भी आपको जो शेयर किया जा रहा है तो उसको करना है सेम डे पे, ठीक है। I promise you that you will get the best results. Best results, when I say best results, so in my mind best result is 100%, right? So if you are getting 100%, I can guarantee you that you can get those marks if you follow the right way, the right path which is shown to you, which is shared with you, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल जो आपको दिया जाएगा उसको आपको रोज़ पढ़ना ही है, उसको आपको फॉलो करना ही है। उसके अंदर ऐसा नहीं करेंगे कि आज छोड़ देते हैं, ठीक है। आज अगर छोड़ दोगे तो अगले दिन आपको 2 दिन का काम पेंडिंग हो जाएगा। तो काम को स्टैकअप नहीं करेंगे, काम को पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, सेम डे का काम सेम डे पे कंप्लीट करते चलेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द कोर्स व्हेन विल बी कंप्लीटिंग दिस कोर्स, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल हैव दिस कॉन्फिडेंस कि हाँ इस बार इस साल हम और 95% 100% मार्क्स स्कोर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो क्लासरूम में शेयर हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्लास के लिए ध्यान रखेंगे कि ऑलवेज यूज़ some kind of headphones or earphones so that you can save yourself from any kind of distraction or other noises which are coming from around. And use a paper and pen. Always keep a paper and pen along with your mobile device. Keep a paper and pen with you so that you can ask a question or query. Alright, about the classroom, there are certain etiquettes of the class that I would like to follow in the classrooms as well. In the respective classrooms, I want everybody to maintain a decorum. And when I say maintain a decorum, I want that you should not be doing personal chats on the forum, on the feed, ठीक है। जो सामने फोरम है, पब्लिक फोरम है, फीड है, उस पर कोई पर्सनल चैट नहीं करेंगे। यू विल यूज़ द लैंग्वेज विच इज़ द कम्युनिकेशन लैंग्वेज, English. All right, please do not
type messages in English, right? So that is something which I do not prefer, right? So I do not like it. So I'd request you to please do not type messages in English, all right? I welcome your queries. I am ready to answer to your queries and questions, but you need to understand that we need to follow some standards, right? So please do not use any regional language or anything other than English on the public forum, on the feed that we follow on classrooms, ठीक है? और personal chat please don't allow it unless it is really necessary for our academics, right? हमारे topic से related, हमारी class से related, if it's really necessary, so go ahead and ask questions from each other and help each other. पर हाँ, अगर वो ज़रूरी नहीं है तो then just simply don't do it, right? So that the others will not be distracted, the others, because जैसे ही आपको मैसेज उसके अंदर आएगा तो एक नोटिफिकेशन सब लोगों के पास चले जाएगा, एक मैसेज सब लोगों के पास चले जाएगा और सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है? तो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने दें और आप भी पढ़ाई करें, एंड आई प्रॉमिस यू this year you will score 95 and 100% marks if you will follow this course structure and you will follow the right path, then definitely will reach the destination. Alright, so this is it for today, and I would like to sign off now. The remaining information shall be shared to you soon on the classrooms, and stay tuned, stay connected to the classroom for latest updates. You can always call and email for any kind of questions and query on the number provided on the screen. Take care of yourself, stay safe, stay indoors. Goodbye.